بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن 5 او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نعمتیں انسان پر ہے ان تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت زندگی ہے۔ اللہ نے زندگی عطا کی ہے ایک نعمت کے طور پر۔ پیدائش سے لے کر موت تک کا جو وقت ہے اس کو زندگی کہتے ہیں، اور یہ زندگی اللہ تبارک و تعالی بندوں کو بندگی کے لیے دیا ہے کہ میرے بندے دنیا میں جا کر میری بندگی کرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں بہت جگہ میں، کئی ساری جگہوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنے زندگی کو کارآمد بنانے کی طرف، اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کی طرف ہمیشہ بار بار توجہ دلاتے رہے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرمائے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ زندگی اور موت کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کر کر آئے گا، تم میں سے کون بہترین اعمال کر کر آئے گا۔ یہ زندگی کے مقصد کو اللہ نے بیان کیا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ ہم نے جو زندگی دی ہے یہ ایسے ہی بیکار نہیں دی ہے۔ ہم انسانوں کو جو پیدا کیا ہے بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر ایک بڑا مقصد ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی چیز بنتی ہے، وجود میں آتی ہے، مقصد کے ساتھ وجود میں آتی ہے کہ اس چیز کا وجود، اس چیز کو بنانے کا مقصد، یہ مقصد ہے، اس مقصد کے بنا پر وہ چیز بنتی ہے، وہ چیز وجود میں آتی ہے۔ اس چیز کو بنانے والا بھی مقصد کے ساتھ بناتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں جو دنیا کی زندگی دی ہے، یہ 60-70 سال کی جو زندگی دی ہے، یہ زندگی کیا ہم نے ایسے ہی بیکار دے دیا؟ اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے؟ اور کیا تمہارا ہمارے پاس دوبارہ لوٹ کر آنا نہیں ہے؟ یہ اللہ قرآن مجید میں بارہا آخرت کی زندگی کی طرف اور دنیا کی زندگی کو کارآمد بنانے کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کو کارآمد بناؤ،
دنیا کی زندگی کو قیمتی بناؤ، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک وہی آدمی کامیاب ہے، وہی آدمی اللہ کے نزدیک فلاح کو پانے والا ہے جس کے زندگی میں اللہ کا دین ہو، نبی کے طریقے ہو۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ تمہارے لیے دین کو میں نے پسند کر لیا، تمہارے زندگیوں میں دین کے رہنے کو مجھے پسند ہے، تمہارے اندر دین کا طریقہ رہنا مجھے پسند ہے، تمہارا اٹھنا دین کے موافق ہو، تمہارا بیٹھنا دین کے موافق ہو، تمہارا چلنا دین کے موافق ہو، تمہارا کھانا دین کے موافق ہو، تمہارا پینا دین کے موافق ہو، تمہارا ماں باپ کے ساتھ پیش آنا دین کے موافق ہو، تمہاری 24 گھنٹے والی زندگی، پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی دین پر آنا ہے، نبی کے طریقے پر آنا ہے۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ آ جائے۔ تو اس لیے اللہ بارہا ہمیں توجہ دلاتے ہیں کہ آخرت کی زندگی یہ آنے والی ہے، اور اس کے لیے یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے ذریعہ ہے۔ اس لیے ایک بزرگ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جیسے تم زندگی گزارو گے، دنیا کی زندگی تم جیسے گزارو گے، دنیا جیسے تم بسر کرو گے، ایسی ہی تمہاری موت آئے گی، جیسے تمہاری موت آئے گی تمہارے قیامت کے دن ایسے ہی اٹھایا جائے گا۔ دنیا جیسی گزری ویسی موت، جیسی موت ویسا اٹھایا جائے گا۔ تو اپنی زندگی کے اندر اللہ کے احکامات کو لانا، نبی کے طریقوں کو لانا، دین کی باتوں کو لانا، دین پر چلنے کا جذبہ پیدا کرنا، تو پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نعمت کے طور پر دیا ہے۔ اللہ نعمت کے طور پر ہمیں یہ زندگی عطا کیا ہے، اس زندگی کو کارآمد بنانا اور اس زندگی کے اندر ہم اپنی آخرت کی تیاری کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں کتنی جگہ بتایا گیا، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند، ہوشیار، دانش مند وہ آدمی ہے جو آخرت کی تیاری کرے، آخرت کی، مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے۔ اور اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، اور سب سے بڑا بے وقوف اور سب سے بڑا عاجز اور احمق وہ آدمی ہے جو کہ اپنے آخرت کی تیاری نہیں کرتا۔ والعاجز من اتبع نفسہ، اپنے نفس کی تابعداری کرتا ہے، اپنے دل کی خواہشات پر عمل کرتا ہے، گناہوں پر چلتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، ماں باپ کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، اور اپنے خواہشات پر عمل کرتا رہے گا اور اللہ کی رحمت پر امید رکھتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اعمال جہنمیوں والے، اعمال نبی کے طریقے کے خلاف، اعمال جہنم میں جانے کے اختیار کر رہا ہے، اور امید اللہ پر باندھا ہوا ہے کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی صفت تو معاف کرنے کی ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کا ایک قانون بھی ہے۔ اللہ ایک قانون رکھے ہیں کہ جو بندہ میری عبادت کر آئے گا، میرے بات کو مان کر آئے گا، میرے احکامات پر چلے گا، اس کے لیے میں نے جنت بنائی ہے، اور اس کے خلاف جو زندگی گزار کر آئے گا، اس کے خلاف جو زندگی گزارے گا اور اس کے خلاف پر اپنے کو ڈالے گا، اس کے لیے میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ ورنہ تو اللہ رحمان ہی ہے، رحیم ہی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، 70 ماؤں کی محبت رکھنے والے ہیں۔ جیسے اللہ محبت کرنے والے ہیں، ستار ہے، غفار ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی جبار بھی ہے کہ فیصلہ لینے پر آئے تو نبی جب سامنے کھڑیں گے تو نبی بھی ڈر جائیں گے۔ انت قلتا، اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کریں گے کہ اے عیسیٰ، کیا آپ نے دنیا میں اپنی عبادت کرنے کی دعوت دی تھی؟ اس سوال پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حالت بگڑ جائے گی۔ تو اپنے زندگی کے اندر اپنے اعمال سے، آخرت کے اعمال سے اپنی زندگی کو کارآمد بنانا۔ اسی کے متعلق
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्ने आदम यौमल क़ियामती इंदा रब्बिही हत्ता युसअल अन खम्सिन, कि क़ियामत के दिन पूरे लोग खड़े रहेंगे अल्लाह के सामने, 5 सवालात जब तक नहीं किए जाएंगे किसी के पैर नहीं हिलेंगे। अल्लाह 5 सवाल हर एक को करेंगे। तालिब इल्म इम्तिहान को जाता है, 5 सवालात, 7 सवालात दिए हैं, 5 लिखना लाजिम है, कंपलसरी 5 लिखना। 7 दे दिए हैं, लिखना 5 है। 5 लिखेगा तो कामयाब होगा, 5 में से 4 भी लिखा तो वो नाकाम हो जाएगा। ऐसे ही अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है कि आदमी के पैर नहीं हिलेंगे, आदमी हरकत नहीं कर पाएगा जब तक कि अल्लाह उसको 5 सवालात ना कर ले। आखिरत के मंजर को कई अहादीसों में बयान किया गया। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, युहशरुन नासु यौमल क़ियामति हुफातन उरातन गुरलन। अल्लाह के नबी फरमा रहे, दुनिया में जिंदगी गुजारने के बाद आखिरत का मामला आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़ियामत तक के आने वाले आखिरी इंसान तक के पूरे लोगों को नंगे पैर, नंगे बदन और बगैर खतना किए के तमाम लोगों को खड़ा करेंगे। सब लोग उसमें रहेंगे। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा पूछने लगी, ए अल्लाह के नबी, अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़िन, मर्द हजरात होंगे, नौजवान होंगे, बूढ़े होंगे, औरतें होंगी, नौजवान लड़कियां होंगी, क्या एक दूसरे को नहीं देखेंगे? शर्म नहीं आएगी कि एक दूसरे को देखेंगे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ आयशा, अल अम्रु अशद्दु अन यंजुरा बाज़ुहुम इला बाज़िन, कोई आदमी किसी को नहीं देख सकता। बाजू वाला, बाजू कौन खड़ा है उसको नहीं मालूम होगा। बाप कहां है, मां किधर है, बेटी किधर है, रिश्तेदार किधर है, दोस्त किधर है, किसी को कुछ भी खबर नहीं रहेगी। हर आदमी अपनी फिक्र में रहेगा कि आज मेरा अल्लाह मेरे साथ क्या करेगा, आज मेरा क्या बनेगा, मेरा फैसला जन्नत का होगा या मेरा फैसला जहन्नम का होगा। इस फैसले के इंतजार में पूरे इंसान रहेंगे, कोई किसी को नहीं देखेगा। ऐसे वक्त में अल्लाह 5 सवालात हर आदमी से करेंगे। उसमें से सबसे पहला सवाल जो अल्लाह तबारक व तआला हर आदमी से करेंगे वो ये सवाल कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह के ने फरमाया, वअन उम्रिही फीमा अफनाहु, ऐ बंदे, मैंने तुझे 70 साल की जिंदगी दिया था, 60 साल की जिंदगी दिया था, 50 साल की जिंदगी दिया था, 25 साल की जिंदगी दिया था, 30 साल की जिंदगी दिया था, इस पूरी उम्र को कहां खर्च किया? दुनिया को कमाने में लगाया, धोखा देने में लगाया, माल कमाने में लगाया, रिश्वत लेने में लगाया, कहां खर्च किया? यह इबादत करने के लिए मैंने दिया था। दुनिया कमाओ, माल कमाओ, मालदार बनो, घर बनाओ, दुनिया को बनाओ, लेकिन दीन के साथ बनाओ, दीन की मेहनत के साथ बनाओ, अल्लाह के नबी के तरीके के मुवाफिक बनाओ। आज दीन नहीं, नबी का तरीका नहीं, अल्लाह के अहकामात नहीं, हराम भी आदमी ले रहा है, हलाल भी आदमी ले रहा है, तमाम चीजों को मिलाकर आदमी खा रहा है। एक पाक चीज रखी हुई है, उसके अंदर कोई नापाक चीज पड़ जाएगी तो पूरा का पूरा नापाक हो जाएगा। ऐसे ही अपनी पूरी जिंदगी को पाक बनाना है अल्लाह के अहकामात से, नबी के तरीके से। तो अल्लाह पूरी जिंदगी के बारे में सवाल करेंगे कि तू अपनी पूरी जिंदगी को कहां खर्च किया। 60 साल की, 70 साल की, जितनी भी उम्र अल्लाह ने दे रखी है, पूरी उम्र के बारे में अल्लाह सवाल करेंगे। ये उम्र कहां खर्च किया? आदमी बालिग होता है, लड़का बालिग होता है 14, 15, 16 साल में, 16 साल से उसके लिए अल्लाह ताला पूछने लगेंगे, वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। अल्लाह कहते हैं कि बंदे, तेरे साथ हमेशा हर वक्त 2 सीसी कैमरे लगे हुए हैं, वो तुम्हें देखते रहते हैं, वो तुम्हारा हिसाब लिखते रहते हैं, तुम्हारी नेकी को भी लिखते हैं, तुम्हारे गुनाह को भी लिखते हैं, तुम्हारे अच्छे काम को भी लिखते हैं, तुम्हारे बुरे काम को भी लिखते हैं। अल्लाह कह रहे हैं कि ऐ बंदे, तेरे साथ ये फरिश्ते हमेशा रहेंगे कि फिर भी तू गुनाह क्यों कर रहा है। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ बंदे, तेरे रहम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में डाला,
किस चीज ने तुझको धोखे में डाल रखा है जिसकी वजह से तू दीन से दूर, अल्लाह से दूर, नबी के तरीके से दूर हो रहा है? अल्लाह सबसे पहला सवाल यही करेंगे कि तुम अपनी पूरी जिंदगी को कहां खर्च किए। जिंदगी के बारे में सवाल करेंगे अल्लाह। दूसरा सवाल जिसके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वान शबाबिही फीमा अबलाहू, अल्लाह के नबी फरमाएंगे कि तुम अपनी, अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुम अपनी जवानी को कहां बोसीदा किए। जवानी के बारे में अल्लाह सवाल करेंगे। जवानी अल्लाह तबारक व ताला, ये जवानी के अंदर जो बंदा अल्लाह की इबादत करता है, गुनाहों को छोड़ता है, नबी के तरीके की तरफ आता है, अल्लाह के अहकामात की तरफ आता है, अल्लाह तबारक व ताला फखर के तौर पर फरिश्तों के पास उसका जिक्र करते हैं कि ए फरिश्तों देखो, ये वही बंदे हैं जिनके बारे में तुमने कहा था अतजअलु फीहा मई, अल्लाह ताला कहेंगे कि ये वही लोग हैं जिनके बारे में तुमने कहा था कि ये दुनिया में जाकर खून बहाएंगे, मैं यस्फिकुद्दिमा, कि दुनिया में जाकर खून बहाएंगे, खून खराबा करेंगे। देखो ये मेरे बंदे हैं, मेरे सामने आकर इबादत कर रहे हैं। अल्लाह जवानी के बारे में सवाल करेंगे, अपनी जवानी को कहां खर्च किया? तो जवानी भी एक नेमत है, पूरी जिंदगी जैसी नेमत है, तो पूरी जिंदगी में एक सबसे बड़ी नेमत वो जवानी है। अल्लाह जवानी के बारे में भी सवाल करेंगे। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तीसरा सवाल जो अल्लाह तबारक व तआला करेंगे, वअन मालिही फीमा इक्तसबा, अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे कि अल्लाह ताला ये सवाल करेंगे कि अपने माल के बारे में पूछेंगे कि माल को कहां से कमाया। वअन मालिही, कहां से तुम इस माल को कमाए हो। माल को कमाने का रास्ता अल्लाह पूछेंगे। माल जहां से भी आ रहा है लेना नहीं है, बल्कि हलाल हराम तमाम चीजें वहां पर मेहनत करना है, और अल्लाह तबारक व तआला के नबी जिन तरीकों से बताया है उस तरीके से अपने जिंदगी में माल का लाना, हलाल तरीके से कमाना, और हलाल तरीके से ही अपने अंदर माल लाकर मालदार बनना है। दीगर तरीकों से अगर कोई माल कमाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको भी पसंद नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला माल के बारे में सवाल करेंगे, जिंदगी के बारे में, जवानी के बारे में, और फिर उसके बाद माल कहां से कमाया। आज दुनिया का सबसे बड़ा तबका यह भी मिलेगा कि कमाते तो हलाल तरीके से हैं, लेकिन खर्च हलाल रास्तों में नहीं करते, हराम रास्तों में करते हैं। इसीलिए अल्लाह पूछेंगे, वअन मालिही फीमा इक्तसबहु व फीमा अनफकहु मिन ऐना इक्तसबहु व फीमा अनफकहु, अल्लाह पूछेंगे कि कहां से कमाया और कहां खर्च किया। खर्च करने के रास्तों के बारे में अल्लाह पूछेंगे कि माल को कहां खर्च किया। कई गुनाहों में तो खर्च नहीं किया, नाफरमानियों में तो खर्च नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला इन सवालात को करेंगे, इन बातों को पूछेंगे। जैसा कमाना हलाल तरीके से है, खर्च करना भी हलाल रास्तों में है। बुरे रास्तों में खर्च नहीं करना, इसराफ में नहीं लगाना, अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करने वाली चीजों में खर्च नहीं करना, फजूल खर्ची नहीं करना। ये तमाम चीजों के बारे में, जैसे अल्लाह ने जिंदगी दी है, ऐसे ही माल जो हम कमाते हैं ये भी अल्लाह ही हमें दिया है, अल्लाह के जानिब से आया है, तो अमानत है, इसकी भी हिफाजत करना और सही तरीके से सही रास्तों में इस्तेमाल करना जरूरी है। उसके बाद पांचवा सवाल जो अल्लाह करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे, माजा अमिला फीमा अमिला, माजा अमिला फीमा अलिमा, अल्लाह पूछेंगे जिन चीजों को जानते थे, जितना इल्म तुम्हारे पास था, उस इल्म में कितना अमल किए। मुझे मालूम है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना है, मुझे मालूम है कि रोजे रखना है, मुझे मालूम है कि सच बोलना है, मुझे मालूम है कि झूठ नहीं बोलना, मुझे मालूम है कि माँ बाप की खिदमत करना, मुझे मालूम है कि जवानी इबादत में लगाना, मुझे मालूम है कि कुरान की तिलावत करना, मुझे मालूम है कि नेकी का काम करना, मुझे मालूम है कि झूठ नहीं बोलना। तमाम चीजों का इल्म है। इसी के बारे में अल्लाह पूछेंगे कि ऐ बंदे, जिन बातों का इल्म तेरे पास था उसमें से तू कितना अमल किया। अल्लाह ये सवाल करेंगे। आज किसको नहीं मालूम, मां बाप की बात को मानना, मां बाप के दिल को नहीं तोड़ना, बीवी के साथ अच्छाई का मामला करना, बीवी के साथ सही तरीके से रहना, मुआशरत के साथ अच्छे तरीके से रहना, हलाल तरीके से कमाना, हराम में खर्च नहीं करना, तमाम चीजों का इल्म। नमाज का पढ़ना किसको नहीं मालूम, रोजे रखना किसको नहीं मालूम, धोखा नहीं देना किसको नहीं मालूम, तमाम का इल्म है। इन्हीं के बारे में अल्लाह सवाल करेंगे कि ऐ मेरे बंदे,
तेरे पास जितना इल्म था, जितनी मालूमात थी दीन की, उस मालूमात पर तू कितना अमल किया, ये अल्लाह सवाल करेंगे। ये 5 सवालात किए बगैर ला तज़ूलु क़दम इब्ने आदम यौमल क़ियामति इंदा रब्बिही हत्ता युसअल अन खम्सिन, तो उसके पैर वहां से हट नहीं पाएंगे। ये 5 सवालात है। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ने जो जिंदगी अता फरमाई ये बड़ी कीमती जिंदगी है। अल्लाह ने हर इंसान के साथ 3 दौर रखे हैं, 3 दौर रखे हैं। अल्लाह ने पूरे इंसानों के साथ ये 3 दौर है। सबसे पहला दौर मां के पेट का दौर है, मां के पेट का स्टेज है। इसके अंदर किसी आदमी को कोई इख्तियार नहीं। अल्लाह जैसे चाहते हैं वैसा वहां प्रोडक्शन होगा, अल्लाह जैसे चाहते हैं वैसी वहां खिलकत होगी। कोई नहीं चाहता कि मैं काला बनकर पैदा हूं, कोई नहीं चाहता कि मैं हाथ के बगैर पैदा हूं, कोई नहीं चाहता कि मैं कान के बगैर पैदा हूं। लेकिन दुनिया में आने वाले कितने लोग ऐसे हैं जो बगैर आंख के आए हैं, बगैर हाथ के आए हैं, बगैर पैर के आए हैं, बगैर जुबान के आए हैं, बगैर दिमाग के आए हैं। अल्लाह कह रहे कि बंदे, ये बच्चा ऐसा पैदा हो रहा है, खुद मां बाप को नहीं मालूम कि मेरा बच्चा ऐसा पैदा हो रहा है। अल्लाह ये बताना चाह रहे हैं, जिनको मैं सेहत के साथ, सही तरीके से, सही आज़ा के साथ पैदा करता हूं, ऐसे ही कभी मैं इसमें कमी बेशी कर भी पैदा कर सकता हूं। ये अल्लाह हमें सबक दे रहे हैं। तो जो अच्छे बनकर पैदा हुए हैं वो अल्लाह का एहसान करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, यह इंसान का पहला दौर है जिसमें इंसान का कोई इख्तियार नहीं, कोई इख्तियार नहीं। दूसरा स्टेज वो दुनिया का है। दुनिया, अब हमारा ये स्टेज, ये दुनिया जिंदगी का दूसरा स्टेज है। अल्लाह कहते हैं इसमें इंसान के लिए कुछ इख्तियार है, जो चाहे करो। दीन का काम करना चाहते करो, नमाज पढ़ना चाहते पढ़ो, छोड़ना चाहते छोड़ो, शराब पीना चाहते पियो, शराब नहीं पीना चाहते मत पियो, नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, हज करो या ना करो, इख्तियार है। क्यों? दुनिया है। यहां कोई पुलिस नहीं है पीछे कि नमाज को नहीं जाएगा तो वो डंडा लेकर मारेगा, नमाज को नहीं जाएंगे तो फाइन पड़ेगी। ऐसा कोई दुनिया में नहीं है। दुनिया में इख्तियार। क्लास में बच्चा जाता है, पढ़ना है पढ़ो, सबक को सुनना है सुनो, क्लास को आना है आओ, ना आना है ना आओ। लेकिन जब इम्तिहान का वक्त आएगा, ना किताब खोलने की इजाजत है, ना बाजू देखने की इजाजत है, ना कॉपी मारने की इजाजत है। अब दिमाग में जो है वो लिखना है। तो आज इख्तियार है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंतुम फिद दुनिया, आज अल्लाह के ने फरमा रहे हैं व अंतुमुल यौमा फिद दुनिया वल अमला वला हिसाबा, आज के दिन तुम दुनिया में हो, यहां अमल है, हिसाब नहीं है। व अंतुम गदन फिल आखिरा, कल के दिन तुम आखिरत में रहोगे। वल हिसाबा वला अमला, वहां हिसाब रहेगा, अमल नहीं रहेगा। आखिरत में 2 ही चीजें हैं, या तो अच्छे कामों का बदला मिलेगा या बुरे कामों की सजा मिलेगी। या तो अच्छे कामों की जजा या बुरे कामों की सजा मिलेगी। ये 2 चीज हो गई। अब तीसरा मरहला, पहला मरहला मां का पेट, किसी को कोई इख्तियार नहीं। दूसरा स्टेज ये दुनिया का पेट, यहां पर इख्तियार दिया अल्लाह। अजान हो रही है, चाहे तो नमाज को जाओ, चाहे तो सिनेमा थिएटर को जाओ, चाहे तो आप नमाज को जाओ, चाहे तो आप शराब के अड्डे को जाओ, इख्तियार है। अब आंख बंद हो जाएगी आदमी की आंख 60 साल में, 70 साल में, 25 साल में, 20 साल में, जब चाहे बंद हो सकती है। दादा 70 साल का दादा जिंदा है, उसके सामने 18 साल के बेटे का जनाजा जा रहा है, 20 साल का बच्चे का जनाजा जा रहा है, 100 साल का दादा जिंदा है, उसके सामने 6 महीने के बच्चे का जनाजा जा रहा है। तो आने में तरतीब है, जाने में किसी की कोई तरतीब नहीं है। तो अपने जिंदगी को बनाना, ये आखिरत की, ये आंख बंद होते ही आखिरत का मरहला, तीसरा स्टेज शुरू हो जाएगा। वहां पर भी इंसान को कोई इख्तियार नहीं है। जैसे आमाल होंगे वैसा ही उसका फैसला होगा, जैसे आमाल होंगे वैसी उसको जजा मिलेगी। उसके अलावा और उसको कोई कुछ नहीं मिलेगा, उसके लिए सजा या जजा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला, अब ये हो गया, ये बातें यहां तक हो गई। अब यहां दुनिया में आ गए। दुनिया बड़ी कीमती जिंदगी है, अल्लाह की बड़ी नियामत है, इतना सब मालूम है। दीन पर चलना है, नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, सब चीजें मालूम। फिर भी दीन पर अमल क्यों नहीं कर रहा? फिर भी दीन पर आदमी क्यों नहीं चल रहा? फिर भी आदमी दीन के तरीके पर क्यों अमल नहीं कर पा रहा? नबी के तरीकों पर क्यों चल नहीं पा रहा? अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर अमल क्यों नहीं कर पा रहा?
तो इसके लिए दुनिया में 4 चीजें रुकावट बन सकती है। आदमी के दीन पर चलने के लिए, आदमी के नबी के तरीके पर चलने के लिए, आदमी का अल्लाह के अहकामात पर चलने के लिए दुनिया में 4 चीजें रुकावट बनती है, 4 चीजें आड़ आ सकती है, और वो 4 चीजें भी अल्लाह ताला के नजदीक वो उज़्र मकबूल नहीं होगी। सबसे पहला उज़्र जो आदमी पेश कर सकता है वो ये कि ऐ अल्लाह, आदमी के लिए सबसे पहली चीज या तो उसकी अमीरी दीन पर चलने से रोकती है कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे दुनिया में इतना माल अता किया था, इतना मालदार बना दिया था कि उसके मैनेजमेंट में, उसको संभालने में, उसको देखभाल करने में मेरी जिंदगी चली गई। मैं नमाजें नहीं पढ़ सका, मैं रोजे नहीं रख सका, इतना माल था मेरे पास। ये उज़्र बंदा पेश करेगा। हो सकता है कि उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे उज़्र पेश करने वालों के सामने हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अगर सामने पेश करे कि देखो मैंने इन लोगों को ऐसी हुकूमत अता किया था कि इनको दुआ करना पड़ा, ला यंबगी लि अहदिन मिन बादी, ऐ अल्लाह मेरे बाद दुनिया में किसी को ऐसी हुकूमत ना देना। इतनी बड़ी हुकूमत, परिंदों पर हुकूमत, हवाओं पर हुकूमत, पानी पर हुकूमत, इतनी बड़ी हुकूमत दिया था, लेकिन मेरी नाफरमानी कभी नहीं किए, मेरे दीन पर चलते रहे, मेरे बातों पर चलते रहे, मेरे अहकामात पर चलते रहे। इतना बड़ा अमीर ना कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा, तो कभी भी मेरी नाफरमानी नहीं की। मालदारों का उज़्र खत्म। अब दूसरा, गरीब। अमीरी रोक सकती है या गरीबी रोक सकती है? गरीबी, गरीब आदमी को अल्लाह बुलाएंगे कि बंदे क्यों दीन पर अमल नहीं किया? अब वो कहेगा अल्लाह मैं तो मालदार तो नहीं था, लेकिन मैं गरीब था, सुबह में काम को जाता था, कमाते कमाते रात को आए तक शाम हो जाती थी, और एक दिन की रोटी का इंतजाम करने में दिन लग जाता था, इसलिए मैं नमाजें नहीं पढ़ सका, रोजे नहीं रख सका, मैं काम नहीं कर सका, दिन का काम नहीं कर सका, अमल नहीं कर सका। अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बुलाओ। ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब था अफ़ख़रुल अंबिया, तमाम अंबिया में सबसे बड़े गरीब नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। उनके पास पानी पीने के लिए प्याला तक नहीं हुआ करता था, कपड़े उनके पास ये क्या 2 जोड़ी रहा करते थे। ऐसी जिंदगी होने के बावजूद भी, रहने के लिए घर नहीं था, ऐसा होने के बावजूद भी कभी भी मेरी नाफरमानी नहीं किए, कभी भी मेरा हुक्म नहीं तोड़े, मेरे अहकामात पर अमल किए। अमीरी का उज़्र खत्म, गरीबी का उज़्र खत्म। अब तीसरा जो आदमी को अल्लाह ताला बुलाएंगे वो कहेगा बीमारी वाला। अल्लाह बुलाएंगे कि बंदे क्या हुआ, क्यों अमल नहीं किया? वो बंदा कहेगा अल्लाह मैं अमीर भी नहीं था, मैं गरीब भी नहीं था, लेकिन मैं बीमार रहा करता था, जब से पैदा हुआ, जब से लेकर मरने तक मैं बीमारी में था, मुझे सुबह बुखार, शाम बुखार, हर एतबार से बीमारी रहा करती थी, जिसकी वजह से मैं दीन पर अमल नहीं कर सका। अल्लाह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे, ये वो मेरे बंदे हैं, इनके कई साल इनके बीमारी में गुजरे, लेकिन मेरी इबादत कभी नहीं छोड़े। अब ये बंदा भी निकलेगा। अब चौथा जो बंदा आएगा वो गुलाम बनकर आएगा। अल्लाह ना मैं अमीर था, ना मैं गरीब था, ना मैं बीमार था, लेकिन अल्लाह मैं गुलाम था, एक कंपनी का एम्प्लॉय था, मैं सरकार का एम्प्लॉय था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, एक कंपनी में काम करता था, जैसे वो बोलते थे वैसे सुनना पड़ता था, वो छुट्टी देंगे तो छुट्टी मिलती थी, नहीं तो नहीं मिलती, और उनके साथ जैसा बोलना वैसा सुनना था, जिसकी वजह से मैं दीन पर अमल नहीं कर सका, नमाजें नहीं पढ़ सका, रोजा नहीं रख सका। अल्लाह कहेंगे ए बंदे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाओ, ये भी गुलाम के तौर पर कई साल तक जेल में रहे, लेकिन ये कभी भी मेरे हुक्म को नहीं तोड़े। तो अल्लाह इन चारों उज़्र पेश करने वालों को, अमीरी, गरीबी, बीमारी और गुलामी, ये चारों के उज़्र पेश करने वालों को भी अल्लाह कबूल नहीं करेंगे। ये चारों के लिए अल्लाह मुकाबले में इन अंबिया को पेश कर सकते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी को कीमती बनाए, अपनी जवानी को कीमती बनाए, अल्लाह के अहकामात पर अपने आप को डाले, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो तरीका हमें बतलाया उसके मुवाफिक अपनी जिंदगी को गुजारे, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। वरना तो आज हमारे घरों के अंदर कई सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारे घरों में परेशानियां हैं, हमारे घरों में झगड़े हैं, हमारे घरों में बेबरकती है, हमारे घरों में बरकत नहीं है। किस लिए नहीं है? पढ़ने का वजीफा दीजिए, कुछ पढ़ने को दीजिए, कुछ घर में अटकाने के लिए दीजिए, कोई तस्बीह पढ़ने के लिए बोलिए, कोई तावीज पढ़ने लटकाने के लिए दीजिए, अटकाने के लिए दीजिए, ये सवालात करते हैं। अरे मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इन तस्बीहात का, इन तावीजात का और इन वजीफों का काम उसी वक्त आएंगे जब आपके अंदर अल्लाह के अहकामात हो। एक आदमी नमाज ही नहीं पढ़ रहा, अब उसको 1000 वजीफे दे दो, कुछ काम नहीं आएंगे।
वजीफे कब काम आएंगे? अल्लाह के हुक्म पर चलना, नबी के तरीके पर चलना। सबसे बड़ा हुक्म अल्लाह का नमाज है, उस नमाज की पाबंदी नहीं है तो हम अब 100 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ो, 100 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ो, 100 मरतबा जो भी पढ़ो, अब उसका फायदा हमें कहां पहुंचेगा? सबसे पहले नमाज की पाबंदी हमारे अंदर आना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के तौर तरीके पर अमल करने का जज्बा हमारे अंदर पैदा होना, तब जाकर हम लोग कामयाब हो सकते हैं। तो हर जुमा की तरह इस मरतबा ये बताया जा रहा कि नमाजों को जो पढ़ी जाती है जुमा में एक मरतबा नहीं है, ये जुमा में एक मरतबा पढ़ना क्या है? एक्सरसाइज है। ये एक तरह का ये क्या हो गया? तफरी हो गया, एक टूर हो गया, एक पिकनिक हो गया। जुमा के दिन जाओ, आओ सबसे आखिर में, जाओ सबसे पहले, सिर्फ 2 रकात कर्जे के तौर पर आए, पढ़े चले गए, ये नहीं है। अल्लाह ने हर बालिग मर्द औरत पर 5 वक्त की नमाज फर्ज किया है। आज कितने लोग पाबंदी कर रहे हैं? नमाजों की पाबंदी नहीं। हमारी सुबह 8, 9, 10 बजे हो रही है, हमारी रातें 11, 12, 1 बजे तक हो रही है, मोबाइलों में हमारी रातें गुजर रही है, हमारी रातें गुनाहों में गुजर रही है, तो हमारे अंदर दीन कहां से आएगा? नमाजों की पाबंदी के बगैर कोई आदमी कामयाब नहीं हो सकता। कामयाब होने के लिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाए हैं, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज पढ़कर मदद चाहो। दुनिया के अंदर जब नमाज आएगी तो अल्लाह की मदद और नुसरत आएगी। तो मेरे भाइयों, जो हजरात सुन्नत नहीं पढ़े, सुन्नत अदा फरमा ले। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।